So in this video, we'll do March 2011 case in the books of Mr. Dhana Balu, investment in 6% debenture account, and you have to mention these things will be given in the question. When you will read the question, you will find all those things. The due dates of receiving interest, these dates are given in the question itself. Due dates are what? 30th June and 31st December. These dates are important. As I told you, we have to accrue the interest every time for every transaction. So these dates are very much important. Then we have to prepare the investment ledger. Investment is an asset, right? So investment ledger consisting of these many columns. Two sides are there and columns are like this. First of all, the date column for recording the date. Then next column is particular column for recording the details. Then we have face value column, interest column, and the cost column. These are 5 columns on the debit side and same columns on the credit side: date, particular, face value, interest, and cost. Okay. Now, before actual starting, before recording the transaction, I will draw the structure. I will draw my entire year कि मेरा साल कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, in between when I have to receive the interest. So here I am drawing the entire year. Now drawn from April to March. How I come to know this? It is given in the question. You can read in the last line कि year ends on March. इसका मतलब है beginning का. इनफैक्ट आप लोग ओपनिंग बैलेंस भी देख सकते हो. इट इज गिवन ऑन द 1st April. सो April to March is my accounting year, is my full year. In this year, during this year, twice I am going to receive the interest. 30th June first मतलब यहाँ पे, and on 31st December मतलब यहाँ पे. These are two dates of receiving interest. Okay. Now I will go date wise. डेट वाइज सम सॉल्व करूंगा और हर एक डेट पे जब भी मेरा कैलकुलेशन होगा आई विल काउंट मंथ्स, कितने मंथ्स का एक्रू हुआ है. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ट्रांजैक्शन. यू कैन रीड द क्वेश्चन. द फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन 1st April, ओपनिंग बैलेंस. बिफोर दैट आई विल टेल यू कि ये लेजर जो है इसमें क्या क्या रिकॉर्ड होगा. वेरी फ्यू ट्रांजैक्शंस आर देयर. ऑन द डेबिट साइड यू हैव टू रिकॉर्ड ओपनिंग बैलेंस एंड purchases. Opening balance and purchases. On the credit side you have to record interest received and sale. These are the main transaction. Opening balance और purchase कहाँ पे record होगा? Debit में. Interest received और sale कहाँ पे record होगा? Credit में. And one more transaction. Whenever there is sale, we have to calculate either profit, either in the sense we have to calculate profit or loss. अगर प्रॉफिट हुआ देन वी विल रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, अगर लॉस हुआ तो वी विल रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड. सो एट एवरी सेल वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस. और हर बार जो भी प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा, इधर प्रॉफिट और लॉस दोनों में से एक ही मिलेगा. प्रॉफिट मिला तो डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं और लॉस मिला तो क्रेडिट में. सो इतने ही ट्रांजैक्शन इस टॉपिक में नॉर्मली होते हैं. सो आवर फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज ओपनिंग बैलेंस विच आई विल रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड. ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है. एंड द थिंग्स आर गिवन. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. फेस वैल्यू यू कैन सी ओवर देयर इन द क्वेश्चन. द फेस वैल्यू इज गिवन एज वेल एज द कॉस्ट वैल्यू इज ऑल्सो गिवन. बोथ थिंग्स आर गिवन. नो नीड टू कैलकुलेट. हमें सिर्फ यहाँ पे लेजर में लिखना है. द थिंग मिसिंग इज इंटरेस्ट. एज आई टोल्ड यू कि इस टॉपिक में, इस टाइप के सम में हर बार आपको एक वर्किंग करना होगा, हर बार आपको एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना होगा. सो इन ओपनिंग बैलेंस ऑल्सो दीज टू थिंग्स आर गिवन बट इंटरेस्ट इज मिसिंग. सो आई विल कैलकुलेट इंटरेस्ट इन द फर्स्ट वर्किंग नोट. कीप इन माइंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू, नेवर ऑन द कॉस्ट. इंटरेस्ट कॉस्ट पे कभी कैलकुलेट नहीं होता. इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू. याद रखना ये हमेशा इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे ही होता है. सो आई विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन द फेस वैल्यू दैट इज 50,000 एंड एट द प्रोवाइडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट. आप देख सकते हो हमारे सम का, इस सम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%. सो ऑन 50,000
at the rate 6%, and the important question, for how many months, कितने months का. For that, this structure will help you. If you have watched the previous video, in that video I explain कि interest accrued कैसे किया जाता है by using this structure. ये structure जरूरी है to decide for every transaction. हर transaction के लिए I told you already कि हर transaction के लिए आपको interest calculate करना है, और कितने month का. फेस वैल्यू पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बोथ थिंग्स विल बी अवेलेबल, लेकिन कितने मंथ्स का यहाँ पे चलेगा. फॉर दैट विल चेक कि मेरा ट्रांजैक्शन कौन सा चल रहा है. कौन सा चल रहा है? 1 अप्रैल, मतलब यहाँ पे 1 अप्रैल. 1 अप्रैल में कितने इंटरेस्ट एक्यूरेट करूंगा? आई विल स्टार्ट फ्रॉम बैक साइड. यही देखा कि हम पीछे से स्टार्ट करते हैं. 1 अप्रैल इस दिन कितने इंटरेस्ट एक्यूरेट होगा? जैन, फेब, मार्च, मतलब 3 months. एंड सी 3 months का इंटरेस्ट कितना आया? 750. 1 अप्रैल 3 months. ये ट्रांजैक्शन होता 1 मई का, तो कितना हो जाता? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 4 months. लेकिन अभी 1 अप्रैल का है, सो 3 months का कितना आया? 750. नाउ यू कैन रिकॉर्ड 750 ओवर हियर. दिस इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन दैट आई हैव रिकॉर्डेड. On 1st April, opening balance was given, recorded on the debit side. Face value was given, cost was given. The only one thing missing, interest, जो मैंने face value पे calculate किया है at the given rate for how many months? By using structure. 1 अप्रैल का ट्रांजैक्शन है, तो कितने months? 3 months. ठीक है. Let's move on. अब next transaction you can read in the question. The next transaction is on 1st May. Purchase का transaction है. सो इन द बिगिनिंग इटसेल्फ आई टोल्ड यू, परचेस कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? डेबिट में. सेल होता क्रेडिट में. सो ऑन 1st में परचेस ट्रांजैक्शन इज देयर, सो आई विल रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड. 1st में टू बैंक, इन ब्रैकेट आई हैव रिटन परचेस just for your understanding. In examination there is no need to write the purchase word in the bracket. You will only write to bank. This is just for your understanding कि मैं कौन सा ट्रांजैक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ. So to bank, okay. Now we have to record the things now. But before recording any figure over here, let's complete the working first. क्योंकि हमें ये तीनों अमाउंट चाहिए, और ये तीनों अमाउंट मुझे वर्किंग में मिलेगा. Some amount may be available in the question itself, but still सबसे पहले मैं वर्किंग करूंगा, then I will put up the figures. लिखना तो यहीं पे है, सिर्फ अमाउंट बाद में लिखते हैं. लेट्स डू द वर्किंग. मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर अवेलेबल इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. सी, फर्स्ट थिंग आई नीड फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेस विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में है 10,000 फेस वैल्यू, एंड ऑन दिस फेस वैल्यू वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट एक्रूड. पहले ही बता चुका हूँ, हर ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट एक्रूड है. यहाँ पे भी था, देखो ओपनिंग में, परचेस में भी है. ओके. So interest accrued, again same logic on the face value always. तो ये रहा face value 10,000. परचेस का ट्रांजैक्शन चल रहा है, परचेस 10,000 का है, फेस वैल्यू 10,000. रेट विल बी फिक्स्ड 6% फॉर ऑल द इंटरेस्ट कैलकुलेशन. द चेंज विल बी मंथ. चेंज कहाँ पे होगा? मंथ. ये 1 अप्रैल का ट्रांजैक्शन था. हाउ मेनी मंथ्स? काउंटिंग 3 months, क्योंकि मैं यहाँ पे था. नाउ आई एम डूइंग द ट्रांजैक्शन ऑन 1st May. तो ये देखो 1st में मतलब मैं यहाँ पे हूँ. काउंट द मंथ्स. से काउंट करोगे? पीछे से. जैन, फेब, मार्च और अप्रैल का मतलब मई तक कितना मंथ्स है? 4 months. आप 1 अप्रैल को थे, कितने मंथ्स थे पीछे? 3. जब आप 1 मई को हो, कितने मंथ्स है पीछे? 3 प्लस ये अप्रैल 4, 4 months. Calculation 10,000 into 6% for 4 months. It will be 200. And very important part, after that it is given in the question, you can read, this transaction of purchase is कम इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन. ये कम ट्रांजैक्शन है, ऐसा उन्होंने दिया हुआ है. देयर कैन बी 2 types ऑफ ट्रांजैक्शन, either it can be कम और एक्स इंटरेस्ट. कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट. एक्स इंटरेस्ट मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, उसमें से इंटरेस्ट पहले ही माइनस हो चुका है. कम मतलब उसमें इंक्लूड है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. तो ये ट्रांजैक्शन कम इंटरेस्ट है. अब ये कम इंटरेस्ट होने से चेंज कहाँ पे होगा?
उससे पहले नेक्स्ट लाइन, आई विल कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ परचेज। अब ये कॉस्ट ऑफ परचेज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? फॉर दैट एवरी टाइम यू विल सी इन द ट्रांजैक्शन कि वेदर द परचेज इज एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। इट कैन बी एट प्रीमियम, एट पार और एट डिस्काउंट। सो वी हैव टू सी दैट कि हमारा ये परचेस है ये प्रीमियम पे है या पार है या डिस्काउंट है। ये पता कैसे चलेगा? यू कैन रीड द लाइन, वहाँ पे प्राइस दिया होगा विच आइदर कैन बी मोर देन 100 और लेस देन 100। इफ इट इज मोर देन 100, 100 से ज़्यादा है, इसका मतलब वो होगा एट प्रीमियम। और अगर वो 100 से कम है, इफ इट इज लेस देन 100, इट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हो वहां पे है इट इज एट 102। 102 का मतलब मोर देन 100 है ना, इसका मतलब इट इज एट प्रीमियम। तो प्रीमियम क्या होगा? प्लस। अगर ये 100 से कम होता, से फॉर एग्जांपल वहां पे होता 99, 100 से कितना कम है? 1%, 1% माइनस। 100 से कम मतलब डिस्काउंट, 100 से ज़्यादा मतलब प्रीमियम। 100 से ज़्यादा इसका मतलब प्रीमियम में ऐड कर रहा हूँ। सो 10,000 प्लस 2% इट विल बी 200। एंड द लास्ट पार्ट, द इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर ये ट्रांजैक्शन कम इंटरेस्ट है देन ये इंटरेस्ट यहां से कम करो। कम है इसलिए कम करना है। वैसे लॉजिकली इट इज व्हाट? कम का मतलब है इट इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इस प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूड है इसलिए हमें वो माइनस करना है। बट याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हो कि कम है तो कम करो। इसके अगेंस्ट और क्या ट्रांजैक्शन हो सकता है? एक्स इंटरेस्ट। अगर एक्स इंटरेस्ट है ना तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये माइनस नहीं होगा। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर अगर एक्स होता तो। लेकिन कम है तो हमें यही इंटरेस्ट यहां से कम करना है, इसीलिए मैं यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर रहा था ये, बिकॉज फिगर्स विल चेंज। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग देन रिकॉर्डिंग। क्या क्या किया मैंने? आई विल रिपीट। मैंने फेस वैल्यू लिखा, इट इज गिवन। Then I calculate accrued interest, face value पे 6%, how many months? 4 months मई तक, ये आया 200। लेकिन ये कम था, मैंने ब्रैकेट में लिखा, I calculated the cost। कॉस्ट कैसे किया? सी, फेस वैल्यू इंटरेस्ट के लिए भी यूज होगा एज वेल एज कॉस्ट के लिए भी। सिर्फ आपको देखना है कि प्रीमियम या डिस्काउंट, हर बार प्रीमियम नहीं होगा। इफ इट इज एज डिस्काउंट तो डिस्काउंट माइनस करके वैल्यू मिलेगा। ये फाइनल आंसर हो सकता है प्रोवाइडेड ये x है। x होता तो ये 200 माइनस नहीं होता, यही फाइनल। लेकिन जब कम होगा तो जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो हमें क्या करना है? कम। एंड हियर इज योर फाइनल आंसर। नाउ स्टार्ट रिकॉर्डिंग दिस। अब ये परचेस में रिकॉर्ड करूंगा जिसमें मुझे तीन चाहिए, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट, तीनों अवेलेबल है। दिस इज वैल्यू 10,000, this is the interest 200 and this is the cost। तीन फाइनल फिगर we have to record, face value, interest and, ठीक है। now next part, हमें डेट वाइज जाना है। सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आप देखोगे कि फर्स्ट मई के अप्रैल के बाद फर्स्ट मई का किया, 1 जून को कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, बट 30 जून को ये लाइन है एंड दिस लाइन इंडिकेट्स कि दिस इज द ड्यू डेट ऑफ रिसीविंग इंटरेस्ट, मतलब हमें यहाँ पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन 30th जून। भी ट्रांजैक्शंस है, डेट वाइज हम नहीं जाएंगे, सॉरी डेट वाइज जाएंगे हम, आगे डायरेक्ट नहीं करेंगे। बीच में क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो तो मेन ट्रांजैक्शन है, हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर अर्निंग द इनकम, और इनकम को लेफ्ट नहीं कर सकते। तो ये इंटरेस्ट रिसीव्ड मुझे जून में करना है। सो आई विल रिकॉर्ड इट फर्स्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट में। आई सेड इन द बिगिनिंग ओपनिंग बैलेंस परचेस यहाँ पे, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड सेल क्रेडिट में। सो आई विल रिकॉर्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 30th June by bank। whatever I am writing in bracket is just for your information, no need to write in the examination, ठीक है। so let's calculate the interest received। for that here is the working, interest received। अब देखो मैंने इंटरेस्ट रिसीव्ड किस पे किया हुआ है? इंटरेस्ट रिसीव्ड किया है द फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अवेलेबल विथ मी ऑन दिस डेट। इस दिन मेरे पास कितने फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट है उसी पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। सो सी मेरे पास ओपनिंग 50 था, प्लस मैंने 10 खरीदा है, अभी तक कुछ सेल नहीं हुआ है। सो मेरे पास अवेलेबल कितना है? 60,000।
तो ये 60,000 पे 6%, और ये 6 मंथ आएगा क्योंकि साल में 2 बार इंटरेस्ट रिसीव करोगे, इसका मतलब वो 6 मंथ का होगा। मतलब यहाँ तक कितना मंथ होता है 6, इसके बाद से नया काउंटिंग होता है, राइट। 6 मंथ का आएगा 1800 एंड आई विल रिकॉर्ड इंटरेस्ट कॉलम। so far we have done 3 transaction। एक मैंने ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड किया, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, देन आई हैव रिकॉर्डेड द परचेस ट्रांजैक्शन, आफ्टर दैट आई हैव रिसीव्ड द इंटरेस्ट डेट वाइज। अब मैं आगे जाऊंगा और आगे देख सकते हो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सा है, सेल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन 1 अगस्त का ट्रांजैक्शन है, और कौन सा है वो, सेल। परचेस डेबिट में रिकॉर्ड होता है, तो सेल कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट में, ब्रैकेट में ऑप्शनल, बट बाय बैंक आपको लिखना है। लाइक परचेस, व्हाट आई सेड कि परचेस यहाँ पे लिखो, लेकिन अमाउंट लिखने से पहले वर्किंग करना है। सेम थिंग आई विल से हियर कि ये लिखो बाय बैंक, लेकिन अमाउंट लिखने से पहले वर्किंग, अमाउंट लिखने से पहले वर्किंग, और ये सेम वर्किंग यहाँ पे आएगा। जैसा परचेस का किया वैसा ही सेल का करना है, नथिंग डिफरेंट। परचेस अलग, सेल्स अलग, अपोजिट टर्म्स, इसका मतलब यहाँ पे अपोजिट नहीं करना है। जैसे परचेस का करते हो वैसा ही सेल का करना है, विथ माइनर चेंजेस। क्या क्या चेंजेस है बता देता हूँ। परचेस फेस वैल्यू पहले लिखा ना, फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेस, यहाँ पे लिखो फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, क्योंकि ये सेल ट्रांजैक्शन है, और ये फेस वैल्यू आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट नहीं किया मैंने कहीं से, इट इज गिवन। जैसे ये भी दिया था फेस वैल्यू, ये भी दिया हुआ है। नेक्स्ट थिंग आई विल कैलकुलेट एक्रूड इंटरेस्ट, इस पे मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो सेम लॉजिक फेस वैल्यू पे, तो ये फेस वैल्यू कितना है 15,000, सो सी इंटरेस्ट एक्रूड 15,000 पे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ द इम्पोर्टेंट, हाउ मेनी मंथ्स, ट्रांजैक्शन कौन से डेट का है, 1 अगस्त। 1 अगस्त मतलब यहाँ पे, 1 अगस्त मतलब यहाँ पे। अब यहाँ पे कितने मंथ्स का एक्रूड हुआ है, तो सी जब मैंने 1 अप्रैल का किया, मैंने पीछे से स्टार्ट किया काउंटिंग, जैन फेब मार्च 3 मंथ। जब मई का ट्रांजैक्शन था, अगेन मैंने पीछे से ही किया 3 प्लस ये 4। लेकिन अब 1 अगस्त का है तो पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पे हमें ऑलरेडी इंटरेस्ट मिल चुका है, पीछे का जो भी एक्रू था मिल चुका है। सो अब मैं पीछे नहीं जाऊंगा, 1 अगस्त के लिए मैं यहीं से काउंट करूंगा। तो 1 अगस्त कितना मंथ का एक्रूड होगा, ओनली 1 मंथ, सो यहाँ पे 1 मंथ का आएगा। सी 115,000 into 6% for 1 month, 1/12, तो कैलकुलेशन इज 75। एंड अगेन यू कैन रीड इन द क्वेश्चन, ये जो ट्रांजैक्शन है ना सेल का, कम इंटरेस्ट है, कम। जैसे परचेज भी कम था, ये भी कम है, इसका मतलब कम होता है तो नीचे कम करना पड़ेगा, ये भी हमें नीचे कम करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, फेस वैल्यू लिखा, इंटरेस्ट किया। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेस, यहाँ पे आएगा सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे परचेस के लिए कॉस्ट होता है, लेकिन सेल के लिए सेलिंग प्राइस होता है, राइट। सो सेलिंग प्राइस, लेकिन कैलकुलेशन का तरीका सेम, फेस वैल्यू लिया था और प्रीमियम ऐड किया था। यहाँ पे भी देखो आप, फेस वैल्यू लिया है और प्रीमियम ऐड किया है। प्रीमियम कैसे पता चला, सी द प्राइस 104 गिवन, 104 का मतलब 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा मतलब प्रीमियम। वही प्राइस अगर होता 100 से कम, 97 फॉर एग्जांपल, तो मैं 3% क्या करता, माइनस डिस्काउंट, लेकिन 104 है तो 4% प्रीमियम। 15,000 प्लस 4% कितना आएगा, 15,600। लेकिन दिस इज नॉट फाइनल, एज आई टोल्ड यू, अगर ये x होता ना x, तो ये फाइनल था, लेकिन ये कम है, कम ट्रांजैक्शन है। जैसे कि यहाँ पे भी कम था, देखो मैंने ये 200 माइनस किया, सेम थिंग आई विल डू हियर, यही 75 मैं माइनस करूंगा, तो मेरा रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस क्या होगा, 15,525। इसका मतलब ये होता है कि ये जो 75 कम, मतलब इट वाज इंक्लूडेड इन द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में वो इंक्लूसिव था, तो मैंने उसको बाहर किया, मैंने उसे माइनस किया, तो मेरा करेक्ट सेलिंग प्राइस कितना मिला, 15,525। So see the comparison between purchase working
and the sale working both are same, exactly same with just minor words changes. जैसे कि यहाँ पे परचेस के बदले क्या है सेल, और यहाँ पे कॉस्ट के बदले क्या है सेलिंग प्राइस. अदरवाइज लॉजिक इज सेम. फेस वैल्यू, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये प्रीमियम है तो प्लस, डिस्काउंट होगा तो माइनस, सेम. कम है तो माइनस, एक्स होगा तो कुछ नहीं, सेम थिंग. सो परचेज एंड सेल वर्किंग सेम होगा, अलग जगह पे होगा. बट नाउ द इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट पार्ट जो मैं प्रॉपरली पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके बाद जो भी है दैट विल बी रिपीटेशन. वो रिपीटेशन क्या है बाद में बता देता हूं. पहले द लास्ट पार्ट, along with every sale working you have to find out the profit or loss on sale. परचेस के लिए प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट नहीं किया जा सकता. परचेस के वक्त हमें नहीं पता प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, लेकिन जब भी आप सेल करोगे यू हैव टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल. प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ये सेल के साथ अटैच होगा. सी रिकॉर्ड नहीं करना, अभी तक रिकॉर्ड नहीं करना है. रिकॉर्ड करने से पहले वर्किंग कंप्लीट करो. तो मैं सेल का वर्किंग तो मैंने कंप्लीट किया. सिंपली सेल मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट. सेलिंग प्राइस इज ऑलरेडी अवेलेबल विथ यू. सेलिंग प्राइस कितना है 15,525. ये देखो लास्ट वाला आंसर, ये ऑलरेडी आपके पास है. इसमें से माइनस करना है कॉस्ट. अब ये कॉस्ट का कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर आपके पास कैलसी है तो स्टार्ट अलोंग विथ मी. कॉस्ट का कैलकुलेशन आई विल टेल यू द टेक्निक. इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज द प्रॉपर फॉर्मूला, इट इज अ टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट. कैसे करोगे, लिसन. डेबिट कॉस्ट माइनस क्रेडिट कॉस्ट. डेबिट माइनस क्रेडिट कॉस्ट, सबसे पहले कॉस्ट कॉलम डेबिट माइनस क्रेडिट, डिवाइड बाय फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट. मतलब पहले कॉस्ट किया डेबिट माइनस क्रेडिट, डिवाइड बाय क्या करना है फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट, multiplied by face value of investment sold. Multiplied by what? This face value of investment sold. I am doing this. See, debit cost 48 plus 10 मतलब 58. माइनस क्रेडिट में कुछ है, कंसिडर ओनली कॉस्ट. कॉस्ट टू कॉस्ट, बीच वाला कॉलम कंसिडर मत करो. कॉस्ट टू कॉस्ट 48 प्लस 10 58, माइनस कुछ नहीं है. इसका मतलब डेबिट माइनस क्रेडिट कॉस्ट इज 58. डिवाइड बाय क्या करना है फेस वैल्यू, अगेन डेबिट माइनस क्रेडिट, 50 प्लस 10 माइनस कुछ नहीं है. इसका मतलब 50 प्लस 10 इज 60. क्या किया मैंने, कॉस्ट कॉलम डिवाइड बाय फेस वैल्यू कॉलम. कॉस्ट डेबिट माइनस क्रेडिट, फेस वैल्यू भी डेबिट माइनस क्रेडिट, मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड. ये सेल वाला मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 15,000. देखो कितना आ रहा है, इट इज 14,500. इसको माइनस करना है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट माइनस, यू विल गेट प्रॉफिट और लॉस. इफ द आंसर इज पॉजिटिव इट इज प्रॉफिट, इफ इट इज नेगेटिव इट इज लॉस. पॉजिटिव है तो प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर, पॉजिटिव आंसर इट इज प्रॉफिट. अगर ये नेगेटिव मिला मतलब सेलिंग प्राइस इज लेस, नेगेटिव मिला तो इट विल बी लॉस. ओके, सो दिस इज द वर्किंग फॉर सेल, जिसमें फर्स्ट पार्ट इनिशियल पार्ट सेम परचेस की तरह ही है, लेकिन साथ में आपको क्या करना है प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना. नाउ लेट्स रिकॉर्ड दिस. अब रिकॉर्ड करते वक्त भी क्या क्या रिकॉर्ड किया, वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट, ये वाला पार्ट ना सेम यू हैव टू रिकॉर्ड फॉर इंटरेस्ट एंड कॉस्ट. फेस वैल्यू एंड कॉस्ट, ये पीछे का पार्ट नीचे का पार्ट नहीं करना है रिकॉर्ड. क्या रिकॉर्ड करना है, सेल मतलब फेस वैल्यू 15,000, इंटरेस्ट एक्यूरेट 75 एंड कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब याद रखना, कॉस्ट का मतलब यहाँ पे कॉस्ट नहीं रिकॉर्ड करना है. वी हैव टू रिकॉर्ड फेस वैल्यू इंटरेस्ट ऑन ये कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब यही है सेलिंग प्राइस. फॉर कॉस्ट यू हैव टू राइट सेलिंग प्राइस. जैसे परचेस में क्या लिखा, फेस वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट, सेम फेस वैल्यू इंटरेस्ट और यही कॉस्ट, ये कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं करना है. ओके, so I will record 15,525. Now you will ask me कि सर यही रिकॉर्ड करना था तो ये क्यों किया. yes, इसका इफेक्ट है. पहले ये सेल रिकॉर्ड किया मैंने, नाउ आई विल रिकॉर्ड प्रॉफिट और लॉस, ओनली प्रॉफिट और लॉस. यहां से सिर्फ क्या रिकॉर्ड होगा,
प्रॉफिट और लॉस, और मैंने पहले ही कहा था इफ इट इज प्रॉफिट टू बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, इफ इट इज लॉस टू बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. तो ये प्रॉफिट है, आई विल रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड. State to profit and loss account as it is profit on sale, and we have to record in the cost column. Record है cost column में 1025. This is half done. In fact, अब यहाँ से आगे जो भी है ना, it will be simply repetition. इस टॉपिक में इस टाइप के सम में 4 ट्रांजैक्शन होते हैं: ओपनिंग बैलेंस, परचेस, सेल और इंटरेस्ट रिसीव्ड. सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है बट ट्रांजैक्शन यही 4 रहेंगे. अब इसके आगे जो होगा ना वो सब कुछ रिपीटेशन है. आप लोग क्वेश्चन में भी देख सकते हो, एक और परचेस का ट्रांजैक्शन, एक और सेल का ट्रांजैक्शन होगा, एक और बार इंटरेस्ट रिसीव. लेकिन जो भी है हम डेट वाइज जाएंगे, ऐसे ही नहीं जो अच्छा लगता है वो पहले नहीं चलेगा. अब अगस्त के बाद आप चेक करो कौन सा ट्रांजैक्शन है, सितंबर, अक्टूबर, मुझे बताओ. आई थिंक द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन 1 सितंबर और एक परचेस है. 1 सितंबर कौन सा ट्रांजैक्शन है? परचेस. तो सेम आई विल रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड. और परचेस रिकॉर्ड करने से पहले इस तरीके का वर्किंग आएगा, जो ऑलरेडी है वैसा ही आएगा, एक्सेप्ट कि अब अमाउंट डिफरेंट होगा और शायद कम नहीं होगा, एक्स होगा. नॉर्मली ऐसे ही होता है, एक कम ट्रांजैक्शन है तो दूसरा एक्स होता है नॉर्मली, बट नॉट नेसेसरी कि हर बार ऐसे ही होना चाहिए, बट विल सी. तो मैं परचेस यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन रिकॉर्ड करने से वर्किंग देखो मैं कॉपी करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में देखो फेस वैल्यू इज 30,000. इट इज गिवन, कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, फेस वैल्यू. सेकेंड थिंग हमें क्या करना है, इंटरेस्ट एक्रूड. इंटरेस्ट एक्रूड किस पे होगा? फेस वैल्यू पे. 6% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? 30,000 फेस वैल्यू, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड द क्वेश्चन इज सेम, हाउ मेनी मंथ्स, कितने मंथ्स का. देखो सेक्शन है 1 सितंबर, हाउ मेनी मंथ्स जरूरत नहीं है कि यहाँ पे ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुका है पिछला, तो मैं यही से काउंट करूंगा. सितंबर 1, इसका मतलब जुलाई, अगस्त. हाउ मेनी मंथ्स? 2 मंथ्स. सो 2 मंथ्स का देखो इंटरेस्ट कितना आएगा, 30,000 इंटू 6% फॉर 2 मंथ इज 300. और देखो मैंने ब्रैकेट में था क्योंकि ये ट्रांजैक्शन एक्स इंटरेस्ट है, और जब भी एक्स इंटरेस्ट होता है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं. करना कब है? अगर कम होगा तो नीचे माइनस होता है. एक्स है तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैं नीचे माइनस नहीं करने वाला हूँ. माइनस कब होता है नीचे? कम इंटरेस्ट होगा तो. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं है. एंड द लास्ट थिंग, फेस वैल्यू लिखा, इंटरेस्ट लिखा, अब क्या लिखना है मुझे? कॉस्ट. उसके लिए प्रीमियम या डिस्काउंट. फेस वैल्यू ये रहा 30,000, और यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में 105 दिया हुआ है, मोर देन 100, 100 से ज्यादा. इस सब में सारे ट्रांजैक्शन मोर देन 100 है, बट लेस देन 100 भी हो सकता है. लेस देन 100 का मतलब डिस्काउंट, जो हम क्या करेंगे? माइनस. लेकिन इस बार प्रीमियम है तो फिर से एक बार प्रीमियम प्लस द वैल्यू आई गॉट इज 31,500. और देखो ये दोनों कंपेयर करो, प्रीमियम ऐड करने के बाद मुझे जो आंसर मिला उसमें से मैंने इंटरेस्ट माइनस किया. क्यों? बिकॉज इट वॉज कम इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन. लेकिन यहाँ पे मैं माइनस नहीं करूंगा क्योंकि ये एक्स है. ये भी अगर कम ट्रांजैक्शन होता ना तो ये 300 यहाँ से माइनस होता और मुझे रिवाइज कॉस्ट मिलता. लेकिन ये कॉस्ट करेक्ट है क्योंकि ये ट्रांजैक्शन एक्स इंटरेस्ट. रिकॉर्ड क्या क्या रिकॉर्ड होता है? फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट. सेम, फेस वैल्यू 30,000, इंटरेस्ट 300 और कॉस्ट 31,500. सो सी 30,000, 300 और क्या है? 31,500. ओके, दिस इज द परचेस ट्रांजैक्शन डन विच वाज रिपीटेड. एक और परचेस हुआ था, किया हुआ है. नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन यू कैन सी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आई थिंक फेब का है. मतलब सी सितंबर के बाद डायरेक्टली फेब का ट्रांजैक्शन है ना, सेल. लेकिन उससे पहले दिसंबर आएगा. अक्टूबर, नवंबर में कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है. डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कब दिया है? फेब में. लेकिन उससे पहले क्या आएगा? दिसंबर. और ये कौन सा ट्रांजैक्शन आएगा?
इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो मैं एक बार कर चुका हूँ। सी मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव किया था कब, 30 जून। अप्रैल का किया, मई का किया, उसके बाद 30 जून इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब ये अगस्त हुआ, सितंबर हुआ, अक्टूबर नवंबर कुछ नहीं है, 31 दिसंबर इंटरेस्ट रिसीव कहाँ पे होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट, फॉर दैट दिस इज द वर्किंग। और मैंने आपको पहले ही बताया था इंटरेस्ट रिसीव्ड किस पे होगा, द फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अवेलेबल विथ यू ऑन दैट डेट। उस दिन आपके पास कितना फेस वैल्यू है उस पे वो कैलकुलेट होगा। जैसे कि जब मैंने ये 30 जून का किया तब मेरे पास सिर्फ ये 2 ट्रांजैक्शन था, मैंने 60,000 पे किया। बट अब मैं कब कर रहा हूँ, 31 दिसंबर। देखो इतना सारा मेरे पास है, आई विल कंसिडर एवरीथिंग। जैसे कि 50,000 पहले से था, 10,000 खरीदा तो 60 हुआ था, एक और खरीदा है मैंने 30, मतलब टोटल हुआ 90। लेकिन इसमें से एक सेल भी हुआ है 15,000 का, जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट है नहीं, सेल हो चुका है, तो मुझे उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सो 50 प्लस 10 प्लस 30 माइनस 15, मतलब 75,000 पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 मंथ। देखो यहाँ पे भी वही था 6% 6 मंथ, साल में 2 बार रिसीव करोगे तो 6 मंथ का ही होगा। 2250 यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा मैं इन द कॉलम 2250। दिस इज इंटरेस्ट। एवरी ट्रांजैक्शन इज रिपीटेड। परचेज, ये दूसरा परचेज, ये इंटरेस्ट रिसीव 30 जून का, अब 31 दिसंबर का। अब शायद एक सेल होगा जो मैं फिर से रिपीट करूंगा। ये ओपनिंग का है ना, सेम इट विल बी रिपीटेड फॉर क्लोजिंग। सो मेन 4 ही ट्रांजैक्शन होते हैं, ओपनिंग, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव, सेल। सिर्फ हमें सीक्वेंस देखना है, क्योंकि हमेशा यही सीक्वेंस नहीं होगा, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स गो। ये इंटरेस्ट रिसीव हुआ। अब देखो एक लास्ट ट्रांजैक्शन है, आई थिंक वो सेल का है। द डेट इज 1 Feb का ट्रांजैक्शन है, मतलब रिकॉर्ड कहाँ पे होगा, क्रेडिट में। पहले भी एक सेल हो चुका है, ये भी सेल है। तो सेम अब ये सेल रिकॉर्ड करने से पहले व्हाट वी विल डू, वर्किंग। सेम वर्किंग यहाँ पे आएगा, एक्सेप्ट फिगर्स विल बी डिफरेंट, क्योंकि ये सेल कितना था, 15,000 का था। नेक्स्ट सेल 15,000 का, ये फेस वैल्यू 15,000, सब कुछ नहीं होगा, फिगर्स विल चेंज, क्योंकि प्रीमियम अलग हो सकता है, इंटरेस्ट अलग आ सकता है, डिपेंड्स। सो द फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 15। नेक्स्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इंटरेस्ट। तो देखो इंटरेस्ट एक्रूड 15,000 पे, फेस वैल्यू पे, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। हाउ मेनी मंथ्स के लिए फ्री है, ये देखना कि हम है कहाँ पे, हम कहाँ पे, 1 Feb। तो अब 1 Feb का कैलकुलेशन यहाँ से नहीं कर सकते। यहाँ से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तक रिसीव्ड हो चुका है, पिछला जो भी था वो यहाँ तक रिसीव्ड हुआ है। इसका मतलब यहाँ से आगे हाउ मेनी मंथ्स, ओनली। तो 1 मंथ का देखो कितना आएगा, विल बी ओनली 75। यहाँ पे 1 मंथ का ही था, हर बार नहीं होता, इट कैन बी डिफरेंट। ओके, सो 75, लेकिन कम था, और कम नीचे माइनस, यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में बुक में कम नहीं है, इट इज एक्स। एक्स है, इसका मतलब हमें ब्रैकेट में लिखने की भी जरूरत नहीं है, और ये नीचे माइनस भी नहीं होगा। कम के वक्त माइनस होता है, एक्स के वक्त नहीं। बट फेस वैल्यू डन, इंटरेस्ट डन, नेक्स्ट वी हैव टू राइट सेलिंग प्राइस। और सेलिंग लिखो जैसे यहाँ पे लिखा था, प्रीमियम होगा तो प्लस, फेस वैल्यू में डिस्काउंट होगा तो माइनस। एंड आई थिंक इस में चारों ट्रांजेक्शन के लिए प्रीमियम था, 102% दिया हुआ है शायद, 102, 100 से ज्यादा मतलब 2% प्रीमियम। तो 15,000 फेस वैल्यू प्लस 2%, इट विल बी 15,300। और देखो ये 75 माइनस नहीं कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे किया। क्यों किया, बिकॉज इट वॉज कम इंटरेस्ट। यहाँ पे नहीं करूंगा क्योंकि ये कम नहीं है, इट इज एक्स। ओके, सो सेल इज डन, बट आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि सेल के साथ एक और पार्ट अटैच है, सा प्रॉफिट लॉस। सेल तो हो चुका है, बट डोंट रिकॉर्ड कि सेल के साथ मुझे क्या करना है, प्रॉफिट और। तो कैसे, सेम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट में से सेलिंग प्राइस मतलब क्या होगा, मेरा ये वाला आंसर, सेलिंग प्राइस
भी वही लिखा था, देखो सेलिंग 15,525, यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस कितना है 15,300, लेस कॉस्ट बाद में लिखता हूँ, लेस कॉस्ट, ये देखो कॉस्ट। अब ये कॉस्ट कैसे करना है, वही फॉर्मूला डेबिट माइनस क्रेडिट जो मैं बता चुका हूँ जब मैंने यहाँ पे किया था। ओके, सेलिंग प्राइस पहले लिख लेता हूँ मैं, कितना है सेलिंग प्राइस 15,300, राइट, सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट, कॉस्ट लेस करके प्रॉफिट या लॉस जो भी मिलेगा, लेकिन कॉस्ट। अब फॉर्मूला जैसे यहाँ पे किया था वैसा ही फॉर्मूला है, बट ये फिगर्स कॉपी मत करो, उस वक्त जब किया था डेबिट माइनस क्रेडिट सिचुएशन वाज डिफरेंट, नाउ द सिचुएशन इज डिफरेंट, फॉर्मूला वही अप्लाई करना है डेबिट माइनस क्रेडिट वाला, लेकिन फिगर्स विल बी डिफरेंट। सी हाउ, सबसे पहले कॉस्ट कॉलम, देखो कॉस्ट कॉलम, डेबिट कॉस्ट माइनस क्रेडिट कॉस्ट, सी द डेबिट कॉस्ट 58, 60, 90,525, 90,525 debit cost minus 15,525 will be 75,000. Debit cost minus credit cost divide by debit value minus credit face value, देखो face value, sorry यार, this figure should not be there, ये 15,000 नहीं चाहिए यहाँ पे क्योंकि ये सेल ट्रांजैक्शन चल रहा है, वो गलती से रिकॉर्ड हुआ है, जस्ट से दिस, एक ही सेल अब तक क्योंकि सेकेंड सेल में चल रहा है, नहीं जाना था, थोड़ा पॉज करते उसको। ओके, नाउ कॉस्ट इज 75,000 माइनस क्रेडिट के किया हुआ, नाउ डेबिट माइनस क्रेडिट फेस, डेबिट माइनस क्रेडिट अब फेस वैल्यू, सी 50 प्लस 10 प्लस 30 इट इज 90, और क्रेडिट सेल हो चुका है पहले, सो 50 प्लस 10 प्लस 30 total is 90 minus 50, so it comes as 70 again, so it is 75,000. Cost 75 आ रहा है कोइंसिडेंस, लेकिन अलग अलग होता है, कॉस्ट पहले डेबिट फिर फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट, सेम यहाँ पे भी ऐसा ही किया था मैंने डेबिट माइनस क्रेडिट, लेकिन उस वक्त फिगर्स वेर डिफरेंट, अब फिगर्स डिफरेंट है। नाउ डेबिट माइनस क्रेडिट कॉस्ट, डेबिट माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ये फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड 15,000, कैलकुलेशन कितना आएगा 15,000 ही आएगा, 75 अपॉन 75 है 15,300 माइनस 15,000, इसका मतलब प्रॉफिट मुझे पहले, इसलिए शायद मैंने प्रॉफिट पहले से ही लिखा हुआ है, लेकिन आप बाद में लिखना, आंसर पॉजिटिव है तो प्रॉफिट, नेगेटिव है तो इट कैन लॉस। अब ये प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करने के बाद वी विल रिकॉर्ड द सेल, ये वाला पार्ट, एंड फ्रॉम बिग पार्ट सिर्फ ये रिकॉर्ड होगा, कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। ओके, तो पहले सेल क्या क्या रिकॉर्ड करना है, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट 75 एंड द सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट, आई रिपीट कॉस्ट कॉलम में ये कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं होता, कॉस्ट में क्या रिकॉर्ड होगा सेलिंग प्राइस, ये लाइन के नीचे का जो पार्ट है उसमें सिर्फ प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट या लॉस वट एवर। सो आई एम रिकॉर्डिंग सेल पहले ही लिख चुका हूं मैं, फेस वैल्यू इंटरेस्ट एंड कॉस्ट, फेस वैल्यू 15,000, इंटरेस्ट 75 और सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट, एंड इन एडिशन टू दिस अब ये प्रॉफिट लॉस, क्या हुआ है मुझे प्रॉफिट, प्रॉफिट कहाँ पे रिकॉर्ड होता है डेबिट साइड में, सो सी सेम डेट टू P&L and in the cost column profit loss to be recorded in the cost column, say profit is 300, and I think transactions are over now, you can read in the book in the question, transactions are over, अब हमें 31 मार्च को सिर्फ क्लोज करना है। ओके, लेकिन क्लोज करते वक्त भी देयर इज सीक्वेंस टू फॉलोड, ऐसे ही आप कुछ भी कॉलम, कोई भी कॉलम पहले क्लोज नहीं कर सकते, हमें सबसे पहले क्लोज करना है फेस वैल्यू कॉलम, एंड क्लोज करने के बाद यू विल गेट डिफरेंस ऑन द क्रेडिट साइड, नेवर ऑन द डेबिट साइड, डेबिट में मिला इसका मतलब समझ लेना आपने कुछ गलत किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस कहाँ पे मिलेगा क्रेडिट साइड में, नंबर कॉलम एंड कॉस्ट कॉलम का, इंटरेस्ट का डेबिट में आएगा लेकिन
नंबर और कॉस्ट, नंबर इन द सेंस फेस वैल्यू एंड कॉस्ट, ऑलवेज ऑन द क्रेडिट साइड। तो पहले से ही मैं लिख लेता हूँ 31 मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यहीं पे मुझे डिफरेंस मिलेगा। डू द नंबर कॉलम, नंबर 50 प्लस 10 प्लस 30 90, यही 90 मैं यहाँ पे लिखता हूँ 90 माइनस 15 15 ट्वाइस मतलब 30,000 माइनस, सो द बैलेंस इज 60। नाउ आई विल टेल यू कि मैंने सबसे पहले फेस वैल्यू कॉलम ही क्यों किया, सीक्वेंस फॉलो करना क्यों जरूरी है, बिकॉज you will close the face value column and you will get the balance. On this balance you have to calculate the interest, जैसे ओपनिंग का होता है ना ओपनिंग पे, वैसे क्लोजिंग पे भी होगा, इसीलिए सबसे पहले फेस वैल्यू कॉलम क्लोज करना जरूरी है, अदरवाइज मैं कोई भी कॉलम कर सकता था। दिस वाज द नीड। कॉलम करो, ये जो बैलेंस मिलेगा इस पे इंटरेस्ट, सी माय लास्ट वर्किंग, आई हैव स्पेस इन दिस साइड, यहाँ पे करता हूँ क्लोजिंग। सी 60,000 फेस वैल्यू है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दैट वी आर यूजिंग, एंड हाउ मेनी मंथ्स, कितने मंथ्स का, तो देखो 31 मार्च का ट्रांजैक्शन है। हाउ मेनी मंथ्स, 31 मार्च मतलब देखो यहां से काउंट करोगे ना तो इट विल बी 3 मंथ्स। तो देखो यहाँ पे 3 मंथ्स का मैंने किया हुआ है, 60,000 पे 6% फॉर 3 मंथ्स 900, और ये रहा 900। फेस वैल्यू कॉलम क्लोज करना पहले जरूरी है क्योंकि उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। कि नाउ इंटरेस्ट इज डन, अब इंटरेस्ट क्लोज करो जिसका क्रेडिट विल बी ग्रेटर एंड बैलेंस यहाँ पे मिलेगा। क्रेडिट टोटल करो 4,200, आई थिंक 5,100 टोटल, 5,100 यहाँ पे लिखता हूँ माइनस 750 200 एंड मतलब 1,250 माइनस करोगे तो आंसर विल बी 3,850 and this will go to P&L account on 31st March। 31st मार्च को ये कहाँ पे चला जाएगा, इंटरेस्ट का बैलेंस, इट इज आवर इनकम गोज टू P&L अकाउंट। एंड फाइनली यू विल क्लोज द कॉस्ट कॉलम, कॉस्ट कॉलम जिसका बैलेंस आपको क्रेडिट में ही मिलेगा। सी द डेबिट टोटल 48 50 60 95 25 ना, सॉरी 98 25 90,825, यहाँ पे लिखा 90,825 माइनस करके बैलेंस कितना आ रहा है 60,000। ओके, अब यहाँ पे भी एडजस्टमेंट होता है जो इस सम में नहीं है, दैट इज द एडजस्टमेंट ऑफ मार्केट वैल्यूएशन। व्हेनेवर मार्केट वैल्यू विल बी गिवन, ये यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, इसका एक छोटा सा कंपैरिजन होगा, बट इस सम में नहीं है, विल सी दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दिस इज द एंटायर सॉल्यूशन ऑफ account. Workings are part and parcel of your answer. Working should form part of your answer. Working के लिए भी मार्क्स होते हैं, क्योंकि आप सोचोगे कि मेन सॉल्यूशन से बड़ा तो वर्किंग है, राइट? वर्किंग है बट जरूरी है, वर्किंग के लिए भी मार्क्स होते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।